اے میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ ابھی 3 سال پہلے تم نے نہیں دیکھا کیا حال ہو گیا تھا کرونا کال میں؟ کبھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں رکا لیکن اس وقت میں رک گیا، کبھی مسجد نبوی میں تالے نہیں پڑے لیکن اس وقت میں تالے پڑ گئے، کبھی مسجدیں بند نہیں ہوئی لیکن اس وقت میں مسجدیں بند ہو گئی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ملتا۔ بڑے بڑے دولت والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے سرمائے والے آج جب کرونا کال میں مرے تو ان کے اولاد انہیں لینے تک نہیں گئی، کتنوں کو الیکٹرک کرنٹ سے جلا کے وہی راکھ کر دیا گیا، اور کوئی کچھ تو ایسے تھے کہ ان کو کاندھا دینے والے تک نصیب نہیں ہوئے۔ وہیں پر اسی محکمے کے لوگ ایک پنی میں لپیٹ کر کے لائے، پولی تھین میں لپیٹ کے لائے اور ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ نماز جنازہ تک نصیب نہیں ہوئی، کوئی جنازے کو کاندھا دینے والا تک نصیب نہیں ہوا۔ اس رب کی پکڑ سے ڈرو۔ ارے قسمت والا ہے وہ جو 4 لوگوں کے کاندھے پہ چلا جائے، نصیب والا ہے وہ باپ جو اولاد کے کاندھے پہ چلا جائے، نصیب والی ہے وہ اولاد جو باپ کے کاندھے پہ چلی جائے، قسمت والا ہے وہ جس کے نماز جنازہ مسلمان پڑھ لے۔ ارے تم نے دیکھا نہیں جو پہلی لہر میں بچ گئے وہ دوسری لہر میں نکل گئے۔ کیسی آئی تھی دوسری لہر؟ بڑے بڑے دولت والے، پیسے والے، ہم نے دیکھا تھا پورا ہاسپٹل خرید سکتے ہیں، اتنی دولت ہے ان کے پاس، لیکن ایسی پکڑ ہوئی کہ ایک آکسیجن کے لیے، ایک سلنڈر کے لیے لاکھوں روپے ہتھیلی پہ رکھ کے پھر رہے تھے کہ ہمیں ایک سلنڈر مل جائے گھر والے، لیکن سلنڈر نصیب نہیں ہوا، اور آکسیجن مل بھی گیا تو ہاسپٹل کے اندر بیڈ نصیب نہیں ہوا۔ کوئی تانگے میں آکسیجن چڑھوا رہا ہے، کوئی چارپائی میں آکسیجن چڑھوا رہا ہے، کوئی بستر پہ آکسیجن چڑھوا رہا ہے۔ وہ امریکہ کے ویگیانک ڈاکٹر جن کا کہنا تھا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا امریکہ کے پاس نہ ہو، وہ چائنا کے ویگیانک کہتے تھے کوئی بھی چیز لے کر آؤ، آدھے گھنٹے میں اس کی نقل، اس کی سیمپل، اس کا کاپی ہم سے لے کے چلے جاؤ۔ ایسا آیا کرونا کہ امریکہ کے ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے، چائنا کے ویگیانک گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اللہ نے بتا دیا بندہ ہو بندہ بن کے رہنا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ بندے کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آ جاؤ مسجد کے دروازے کھلے ہیں، آ جاؤ مسجد کی صفیں پکار رہی ہیں، آ جاؤ مسجد کے وضو خانے پکار رہے ہیں، آ جاؤ مسجد کے در و دیوار پکار رہے ہیں۔ وہ قبر کی کالی کوٹری جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کبھی رات کا قبر کا تصور کر لیا کرو۔ برسات کے موسم میں قبرستان جا کے دیکھو کیسے قبروں میں پانی بھرے ہوئے ہیں، حسن دفن ہو گیا، شباب دفن ہو گیا، دولت چلی گئی، سرمایہ چلا گیا۔ وہ جو گھمنڈ کرتے تھے کہ کوئی مجھ سے بڑا نہیں ہے، آج پانی میں گل سڑ کر کے ایک طرف ہو گئے۔ گھمنڈ کس بات پہ؟ تکبر کس بات پہ؟ ارے اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ کوئی کہے ایک جواری کا جنازہ جا رہا ہے، اس حال میں مت جانا کوئی کہے ایک شرابی کا جنازہ جا رہا ہے، اس حال میں دنیا سے مت جانا کہ کوئی کہے ایک عیاش کا جنازہ جا رہا ہے۔ ارے اس حال میں دنیا سے جانا کہ ادھر جنازہ اٹھے، ادھر محلے کے لوگ کہے غدار مصطفیٰ کا نہیں وفادار مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، عاشق مصطفیٰ کا جنازہ جا رہا ہے، نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، عالموں کا ادب کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، حافظوں کا ادب کرنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ جب اس حال میں جاؤ گے تو امام صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نیک بن کے دنیا سے جانا، متقی بن کے دنیا سے جانا، پرہیزگار بن کے دنیا سے جانا، عاشق رسول بن کے دنیا سے جانا۔ کسی کا حق مار کے مت جانا، کسی کو ستا کے مت جانا، کسی پہ ظلم کر کے مت جانا، نیک بن کے جانا کہ لوگ تمہارے مرنے کی خوشی نہ منائیں، بلکہ جب جنازہ اٹھے تو آنکھوں میں آنسو ہو اور رو کر کے یہ کہہ دیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے،
बेदाग ही बिक जाए ये बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। उसने अभी ढील दी है, जिंदगी की डोर चल रही है, इसको गनीमत जानो, अल्लाह की इबादत करके जिंदगी गुजार दो। और एक पैगाम दे रहा हूं, कभी सोचना, मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब किस जगह और किस हाल में आ जाए। अगर फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो बताओ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। और कानों में ब्लूटूथ लगा के, एयरफोन लगा के, एयरबड्स लगा के रोड पे गाड़ियां दौड़ाने वालों, गाने सुनने वालों, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं इस वक्त कि अगर आदमी उस पर अपना एतकाद रख ले, यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा, काफिर हो जाएगा। वो सुन रहे मेरी कौम के नौजवान, कोई कार में बजा रहा है, कोई ऑटो में बजा रहा है, कोई बाइक पे चल रहा है तो कानों में एयरफोन लगा के सुनता जा रहा है। खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मौत आ गई और गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए तो कौन है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगा? कोई है? आला हजरत फरमाते, उनको रहम आए तो आए, वरना वो करीम मार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। आज बदनिगाही करके ये आंखें इस लायक नहीं रही, फिल्में देख के आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़ा हो सके। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है, क्या होना है। मेरे अजीजों, आज ही तौबा करके जाओ और गुनाहों से तौबा करो, नमाजों की पाबंदी करो, कब्र की काली कोठरी को याद करो। वहां ना तो कोई इन्वेटर लगा हुआ होगा, वहां ना कोई बल्ब लगा हुआ होगा रोशनी के लिए, अंधेरा ही अंधेरा होगा। कभी तुम्हें ये लगे ना कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, तो एक मैं नुस्खा बता के जा रहा हूं, एक नुस्खा। और नुस्खा क्या है कि एक दिन घर पे जाना, शाम को, रात में जब इशा के बाद लेटो ना बिस्तर पे, तो मेरा ये नुस्खा याद रखना। कमरे में अकेले लेट जाना और लाइट बुझा देना, अंधेरा कर लेना, और आंखें बंद करके एक तसव्वुर करना कि मैं मर चुका हूं। ये तसव्वुर करना कि अब मैं मर चुका हूं और मेरा वो कीमती लिबास जिसे मैं कई शोरूम खरीद के, देख करके फिर खरीद के लाया था, वो मेरे बदन से उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट के उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया, अब गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि कफन पहना के मुझे चारपाई में लिटा दिया गया, अब मेरे घर वालों से कहा जा रहा है कि आखिरी बार इनका चेहरा देख लो। मेरी औलाद से कहा जा रहा है, बेटा आखिरी बार अपने बाबा का चेहरा देख लो। मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि महर माफ कर दो, इसका चेहरा आखिरी बार देख लो। भाई अलग रो रहे हैं, बहनें अलग रो रही हैं, सब आखिरी बार चेहरा देख रहे हैं। तसव्वुर करना कि अब 4 लोग मुझे उठा के कांधे पे कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। फिर तसव्वुर करना, अब कब्रिस्तान, मेरा जनाजा पहुंच गया है, अब मुझे उस कब्र के अंदर रख दिया गया है, जहां ना तो कोई रोशनदान है, ना कोई खिड़की है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई बल्ब है, ना कोई सीएफएल है, ना कोई इन्वेटर का इंतजाम, रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, रख दिया गया मुझे। अब तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई, बाप वापस आ गया, भाई वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, औलाद वापस आ गई, सब वापस आ गए। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हुआ हूं, अब मुझे अपना हिसाब देना है। 2 फरिश्ते, मुनकर और नकीर, हदीस पाक में आता है, ऐनाने अर्ज़कान, उनकी आंखें नीली होंगी, डरावनी, नाखून बड़े होंगे, जमीन को नाखून से चीरते हुए आएंगे और आके झंझोड़ करके मुर्दे को उठाएंगे और उठा करके कहेंगे, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। अब उस वक्त में मैं अकेला हूं, मुझे हिसाब देना है। उस कब्र की काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूं,
बताओ अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी वो शराब की दुकान की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कभी जुए की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कभी जिना के अड्डे की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए कभी किसी भाई का हक खाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी किसी को सताएगा? वजह मौत का डर निकल गया हमारे दिल से। हम भूल गए कि हमें मरना भी है और कब्र के अंदर भी जाना है। अच्छे काम करके कब्र में जाओ, नेक अमल करके कब्र में जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हमारे उलमा ने फरमाया कि जब इंसान नमाज पढ़ता है और नमाज में जो आज़ा वुजू में धोए जाते हैं, वो आज़ा कब्र के अंदर रोशनी का काम करते हैं। वो आज़ा चमकेंगे, रोशनी का काम करेंगे कब्र के अंदर। जब नमाज पढ़ोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी, जब अल्लाह की इबादत करोगे तब ना कब्र में रोशनी होगी। इसलिए कब्र की रोशनी का इंतजाम करो, कब्र की रोशनी की तैयारी करो। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुजू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। और सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी। अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले, कुछ जरा सोच खिलाई थी कमाई कैसी। इसलिए नेक अमल करो, मुत्तकी बन के रहो, परहेजगार बन के रहो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। इस हाल में दुनिया से जाओ कि कोई तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाए कि अच्छा हुआ मर गया, लोगों को सताता था, बल्कि आंखों में आंसू हो और ये कहें कि एक अच्छा आदमी दुनिया से चला गया। ये जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे आप यहाँ हाजिर आए। परवरदिगार आलम इन उलमा के इल्म अमलो उम्र में रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जिसने इस प्रोग्राम को सजाने में हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और सबकी उम्र में रिस्क में बरकत अता फरमाए। परवरदिगार आलम जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, और जिनके माँ बाप या उनमें से कोई एक दुनिया से चला गया है, मौला उनकी मगफिरत फरमा दे, बख्शिश फरमा दे। हमारी माँ बहनें बेटियां सरे शाम से प्रोग्राम सुनने आई हैं, मौला अपने हबीब के सदके वसीले से मौला सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो।